Hello everyone. Today I'm going to start our fifth poem, A Legend of the Northland, which is written by Phoebe Carey, who is an American poet. And this poem is a legend. Legend means old traditional story. And this poem gives us a theme that it is about an old woman who was cursed for her greed and her indifference to charity and generosity. The main idea of writing the legend is to instill in the minds of the children the value of kindness, generosity, and charity, irrespective of who the person is. Otherwise, one would have to face the consequences. And this poem will teach the students not to be selfish. It is meant to be read by small children. It is based in Northland, a very cold place where once Saint Peter came to the door of a little woman who was baking cakes and asked her for a cake as he was feeling very weak due to a fast. She was selfish and didn't even give him a small piece. Saint Peter cursed her and told her that she was not fit to live in human form and enjoy food and warmth. He turned her into a woodpecker, and who has to bore a hole in hard and dry wood to get its skinned food. इट मीन्स कि ये जो पोएम है वो हमारे लिए क्या है, ये एक फॉक टेल है सबसे पहले तो, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो है चलती रहती हैं, जो कि शिक्षाप्रद होती हैं। और ये जो है बच्चों के लिए एक इसको देने का मोटिव है, एक ऑब्जेक्टिव है। वो क्या है कि बच्चों को इससे शिक्षा मिलती है नॉट टू बी सेल्फिश ना होने की। किसी को भी जो है सेल्फिश नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये पोएम हमें बताएगी कि कैसे सेंट पीटर जो है एक औरत को, एक सेल्फिश, एक ग्रीडी औरत को जो है किस में टर्न कर देते हैं, वुड पैकर में टर्न कर देते हैं ड्यू टू हर ग्रेडनेस, उसकी ग्रेडनेस की वजह से। और and in this poem it is told that man is one creation of God who never reaches a state of contentment, satisfaction. एक ऐसी क्रिएशन है भगवान की, इंसान जो कभी भी जो है सेटिस्फाई नहीं होता है, कभी भी जो है संतुष्ट नहीं हो पाता है। उसको हमेशा जो है मोर एंड मोर जो है वो अचीव करने की लगन लगी रहती है। ही कीप्स वांटिंग मोर एंड मोर, हिज लिमिट्स फॉर सेटिस्फैक्शन इज अनमेजरेबल। उसकी लिमिट्स को जो है कोई मेजर ही नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी लिमिट्स होती ही नहीं है। आवर हैंड्स आर ऑलवेज विद द palm फेसिंग अपवर्ड टू रिसीव मोर एंड मोर। हमारे जो हाथ हैं वो किससे अटैच्ड हैं, हमारी हथेलियों से, जो हमेशा किसको अचीव करने की कोशिश करती है, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अचीव करने की लगी रहती हैं। सो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ मैन that has been described in this poem, The Legend of the Northland. So I'm going to start this poem. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they can't sleep them through. Away, away, it means very far away. In the Northland, Northland means a place located in the far north of Europe, where the hours of the day are few. Hours of the day means daylight hours. सुबह जो दिन की रोशनी के घंटे हैं वो बहुत ही कम हैं, जहाँ जब सूरज जो है वहाँ पर चमकता है। बहुत कुछ थोड़े से समय के लिए, कुछ ही घंटे के लिए जो है वहाँ पर सूर्य की रोशनी दिखाई देती है, थोड़ी डे लाइट होती है। And the nights are so long in winter. And now the poet tells about the nights which are very long in winter season, because in winter season such type of areas, northland type of areas, not always
फेस स्लैंटिंग रेज ऑफ सन। अब जो है सन की स्लैंटिंग रेज जो उनके ऊपर पड़ती हैं और उसकी वजह से जो है रातें अंधेरा ज़्यादा टाइम रहता है और रोशनी के जो है कुछ ही घंटे कुछ ही टाइम जो है उनको मिलता है। इसी वजह से जो है विंटर सीजन में क्या होता है, नाइट्स जो है बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, सो दे कांट स्लीप दैम थ्रू। इसी वजह से जो है वो पूरी रात जो है नहीं सो पाते हैं, कांट स्लीप थ्रू द एंटायर नाइट। सो आई एम टेलिंग यू अगेन, here the poet introduces the place from which her story is derived, Northland, which is the Northland where the days are short and nights are long in winter. It is so cold in that season that people can't sleep comfortably the whole night and often wake up. As the nights are very long, they are also not able to sleep the entire night. When the snow falls, people like to go sledging by tying reindeers to their sledges to pull them because of the cold. So, where they harness the swift reindeer. लोग क्या करते हैं, रात को सो तो पाते नहीं हैं क्योंकि रातें बहुत ज़्यादा लंबी हैं, तो रेंडियर को जो है अपनी स्लेजेस में लगाते हैं। स्लेज क्या है, बर्फ़ में जो है चलने वाली गाड़ियाँ, और स्लेज जो है कौन खींचता है, रेंडियर खींचते हैं। और रेंडियर्स जो है वो क्या करते हैं, स्लेज को खींचते हैं व्हेन इट स्नोज, जब भी कभी स्नोफॉल होता है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब्स, और बच्चे कैसे लगते हैं, बियर के बच्चों जैसे लगते हैं। इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, क्योंकि सर्दी के समय में वो कैसे जो बड़े ही फनी और फरी क्लॉथ्स पहनते हैं, मेड ऑफ फर, जो कि फ़र के बने हुए होते हैं। सो दे लुक लाइक बियर कब्स, और इसी वजह से जो है वो बियर के बच्चे की तरह नज़र आते हैं। सो बिकॉज ऑफ द कॉल्ड, चिल्ड्रन वेयर हैवी वूलन एंड फर क्लॉथ्स दैट कवर दैम अप fully and make them look like bear cubs. So in these two stanzas, what we came to know about the place about which the legend is told here, and physical condition, geographical condition of that area is told in our first stanza, that their nights are so long and days are very small. Daylight, because they don't face daylight for a long time, so men can't sleep throughout the entire night, so they wake up early and they go to harness the swift reindeer. They harness the swift reindeer to the sledges whenever there is snowfall, and the children look like the bear cubs because they wear funny clothes which are made up of fur. They tell them a curious story. I don't believe this true. It is this. They tell them a curious story. I don't believe this true, and you too may learn a lesson if I tell the tale to you. Here the poet says that the people of that area, people of Northland, tell a very strange story. Curious means strange. बहुत ही अजीब सी एक कहानी बताते हैं. And what is that? I don't believe this true. But when they speak such type of story, I never believed them. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. But of course I don't believe this story, but it gives a lesson. If I will tell you this story to you, you will also get a lesson from this story. Here what the poet wants to say: parents in the Northland tell their children a story. Although the poet doesn't think the story is true, it should be told because it teaches children an important lesson. So once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. Now the story starts. What is the story?
Then the poet begins to tell the story. The story is about the Saint Peter as he traveled around the world preaching the word of God. सेंट पीटर क्या है? एन अपोसल ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के एक उपदेश करने वाले प्रचारक। जैसे हमारे यहाँ पर महात्मा होते हैं, भगवान गुरु होते हैं, उसी तरह से जो है जो सेंट पीटर थे वो भी भगवान के एक ऐसे ही भेजे हुए दूत थे, अपोसल दूत थे। अपोसल किसको बोलते हैं? दूत को। और वो क्या करने के लिए आए थे? वो जो है घूम के जो है पूरी पृथ्वी पर अपना प्रचार प्रसार करना चाहते थे, लोगों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस अबाउट सेंट पीटर lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। और वो क्या करते थे? He was alive when lived in the world below means he was alive। जब वो जिंदा थे तो वो घूमते थे पूरी पृथ्वी पर। उन्होंने ये जो है डिटरमाइन किया था, निश्चय किया था, उन्होंने रेजोल्यूशन लिया था कि मैं पूरी पृथ्वी पर, पूरी एंटायर अर्थ पर जो है घूम कर जो है धर्म का प्रचार प्रसार करूँगा, लोगों को अच्छी शिक्षाएं दूंगा। प्रीचिंग मीन्स गिविंग सरमन्स। ही यूज्ड टू गिव सरमन्स just as he did, you know, as you all know about him। You have heard about Saint Peter also, and I have told you also that Saint Peter was a apostle of Christ, and when he was alive he used to go, he walked about every place for giving sermons, and he wanted to aware the world, aware the citizens of his area of the world about the God, about the truth। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। Now what is told here? When he was wandering here and there for giving sermons to people, then he came to a door of a cottage। Cottage means a small house। In traveling around the earth, when he was traveling around the earth, where a little woman was making cakes, when he came to the door of a cottage, he saw that a little woman was making chapatis there and baking them on the hearth। और वो क्या कर रही थी? उनको चूल्हे पर पका रही थी। शी वॉज बेकिंग दैम ऑन द हर्थ। हर्थ मीन्स चूल्हा। अगेन आई एम टेलिंग यू, सेंट पीटर केम टू वुमन्स हाउस इन द नॉर्थलैंड just when she was baking cakes in her fireplace for herself, and what happened after that? And being faint with the fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one। और जो सेंट पीटर थे उन्होंने पूरे दिन से फास्ट रखा हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ? वो कैसा फील कर रहे थे? अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे थे। उनके अंदर हिम्मत नहीं बची थी, क्योंकि पूरा दिन से वो घूम रहे थे और खाली पेट थे, लोगों को शिक्षाएं देते हुए घूम रहे थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और पूरा दिन बीत चुका था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स। तब सेंट पीटर ने उस औरत से कहा कि तुम अपनी जो है केक्स में से, अपनी जो रोटी हैं उनमें से मुझे एक रोटी दे दो, ताकि मैं जो है अपना काम अच्छे से कर सकूं और मेरे अंदर जो है थोड़ी सी एनर्जी, ऊर्जा जो है इससे मुझे मिल सके। सो ही कैन सस्टेन। He asked the woman to give him only one of the many cakes that she was baking. But what happened after that? Has the woman give any cake to Saint Peter? So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Here the greediness of that little woman is shown in this stanza।
When she started making little cake, as it but as it baking lay, she looked at it and through it seemed too large thought it seemed too large to give away. जब वो उस केक को बना रही थी, उसने बहुत छोटा सा केक बनाया, और फिर जब वो उसको बना रही थी तो उसने देखा कि ये तो जो है देने के लिए काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा केक जो है मैं किसी को कैसे दे सकती हूँ. गिव अवे मीन्स हाउ कैन आई डोनेट फ्रीली दिस केक. देयरफॉर शी नीडेड अनदर. फिर उसने क्या किया, मोल्डेड द डॉ ऑफ, नीडेड मीन्स मोल्डेड द डॉ. उसने जो है आटा फिर से लगाया और उसने जो छोटी सी लोई बनाते हैं हम, उसको जो है और भी छोटा कर दिया. एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और भी ज़्यादा छोटा उसको जो है बना दिया ताकि और छोटी रोटी बना सके. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन. लेकिन जब वो उसको भी पकाना शुरू कर देती है, उसने एक दूसरी जो है थोड़ा सा आटा लेकर के दूसरी रोटी बनाना शुरू किया, क्योंकि वो जो है पहली रोटी उनको देना नहीं चाहती थी, उसको वो बहुत ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही थी. लेकिन फिर उसने छोटा आटा लिया, छोटी सी लोई बनाई और फिर डॉ बनाया, और उससे जो है उसने छोटी सी रोटी बना करके जब वो उसको भी पकाना शुरू करती है, उसको पलटती है, तब वो क्या देखती है कि तो पहले जितनी बड़ी बन गई है. तो इससे क्या दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी और वो जो है कोई चपाती कोई रोटी जो है सेंट पीटर को डोनेट नहीं करना चाहती थी. देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डॉ. फिर उसने क्या किया, टाइनी स्क्रैप मीन्स वेरी स्मॉल पीस ऑफ डो. डो मीन्स फ्लोर मिक्सचर, जो उसने आटा लगा रखा था उसका जो है छोटा सा पीस उठाया, बिल्कुल छोटा सा, एंड रोल्ड इट फ्लैट. और फिर उसको जो है बेल कर जो है बहुत ही ज़्यादा पतला कर दिया, लंबा बना दिया. एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और इसको जो है एक वेफर की तरह बिल्कुल पतला बना दिया. बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसको भी जो है दान नहीं कर पाई. पार्ट विद मीन्स गिव अवे, वो उसको भी जो है दे नहीं सकी. वेफर मीन्स थिन स्लाइस, जैसे हम खाते हैं चिप्स वगैरह खाते हैं, तो जैसे वो बहुत ज़्यादा पतले उस फ्लैट जो है उस फ्लोर की बनी हुई होती हैं, बहुत ही ज़्यादा थिन लेयर होती है, वैसे ही थिन लेयर जो उसने उस चपाती की बना दी, क्योंकि उसने बहुत थोड़ा सा आटा लिया था और उस थोड़े से आटे से जो है वो उस चपाती को बनाती रहती है और बहुत ही ज़्यादा पतला उसको कर देती है, और वो एक वेफर की तरह नज़र आता है. लेकिन वो उसको भी जो है दान नहीं कर सकी. फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. और फिर वो क्या कहती है, then she said to Saint Peter that my cakes that seem too small, मेरे केक्स जो मुझे बहुत ज़्यादा छोटे नज़र आते थे जब इनको मैं खाती थी, when I eat of them myself, जब मैं इनको खुद खाती हूँ, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब मैं आज इनको देना चाह रही हूँ, देती हूँ किसी को, तो ये कितने बड़े नज़र आ रहे हैं मुझे, कितने बड़े बन गए हैं. सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, और फिर उन सब को उठा करके वो एक अलमीरा के ऊपर रख देती है. इट मीन्स उसने जो है कोई भी पार्ट जो है, एक छोटा सा टुकड़ा भी जो है सेंट पीटर को नहीं दिया, क्योंकि उसको लगा कि जो है ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा. और फिर वो खुद सोचना भी शुरू कर देती है कि ये जो केक मैं बना रही हूँ आज, जब मैं इनको खुद खाती तो मुझे बहुत जो छोटे नज़र आते हैं, लेकिन आज जब इनको देने का समय आया तो ये कितने बड़े बन रहे हैं, और वो उनको पार्ट नहीं कर पाती, अपने आप से अलग नहीं कर पाती है, दे नहीं पाती है, और इसी वजह से जो है उनको शेल्फ पे रख देती है. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री. व्हेन सेंट पीटर सॉ दैट सीन ही ग्रू वेरी एंग्री. वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं. फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड ही वॉज बिकमिंग अनकॉन्शियस ड्यू टू टायर्डनेस. वो जो है पूरे दिन से भूखे थे और जो है बहुत ज़्यादा थके हुए थे, जिसकी वजह से उनसे चला भी नहीं जा रहा था, बिल्कुल अचेत होते जा रहे थे. एंड श्योरली सच ए वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट. और एक ऐसी औरत
जिसकी हरकत जो है इतनी गलत हो और जो बहुत ज़्यादा ग्रेडी हो, उस औरत को देख करके तो जो है किसी भी साधु का गुस्सा जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। ये जो उसकी हरकत थी, जो एक्टिविटी उसने औरत ने की थी, वो जो है एक ऐसे साधु को उकसाने के लिए काफ़ी थी, जो पूरे दिन से भूखा है, पूरे दिन से घूम रहा है, थका हुआ है। और जब औरत के पास इतनी सारी रोटी हैं, रहने के लिए घर है, खाने के लिए सामान है, वो अपने आप जो है कोई दान नहीं कर पा रही है, तो सेंट पीटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा इस पे आ जाता है। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम जो है ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए लायक नहीं हो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो और इसीलिए तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने लायक नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हारे पास जो है ये खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए छत है और अपने आप को गर्म रखने के लिए आग भी है। तो सब चीज़ें जो है तुम यूज़ कर रही हो, कंज्यूम कर रही हो, तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो कि तुम इस अवस्था में रहने के लिए जो है सही नहीं हो, तुम्हें ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स टू एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। अब सेंट पीटर उसको क्या कर्स करते हैं, श्राप देते हैं उसको कि यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, और उसको श्राप देते हैं कि तुम्हें भी जो पक्षियों की तरह अपना घोंसला बना करके रहना होगा। एंड शेल गेट योर स्केंटी फूड, और फिर तुम भी जो है अपना थोड़ा सा खाना प्राप्त किस तरह से करोगे, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। बोरिंग मीन्स मेकिंग हॉल्स इन द ट्री ट्रंक, यानी कि तने में जो है चोंच मार मार के जो है अपना खाना जो है तुम प्राप्त करोगी। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरा दिन जो है हार्ड और ड्राई वुड में, सूखी और कड़ी लकड़ी में जो है चोंच मारती रहोगी और इससे जो है तुम अपना खाना प्राप्त करोगी। तुम जो है इन सब फैसिलिटीज़ के लिए ठीक नहीं हो, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ तुम्हारे पास होने के बाद भी जो है तुम किसी को कुछ दे नहीं सकती हो, इतनी ज़्यादा जो है ग्रीडी हो, तो तुम्हारा जो है इस फॉर्म में रहना ठीक नहीं है। और उसको श्राप दे देते हैं कि तुम जो है एक पक्षी की तरह अपना घोंसला बनाओ, और जैसे पक्षी जो है अपने थोड़े से खाने को प्राप्त करने के लिए, वुड पैकर जो है अपने थोड़े से खाने को प्राप्त करने के लिए पूरा दिन जो है हार्ड ड्राई वुड में चोंच मारता रहता है, और वैसे ही तुम भी जो है करो। देन आप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्lew a woodpecker, for she was changed to a bird. What happened then? The woman went up the chimney of her house being speechless. वो औरत जो है उसके घर की जो चिमनी थी, चिमनी क्या होता है, शार्प टू ड्रॉ अवे द स्मोक फ्रॉम अ फायर प्लेस, एक ऐसी जगह जहाँ से जो है अंगीठी से निकला हुआ धुआं जो है पास होता है। और वो औरत भी क्या होती है, उस बिना बोले जो है चुपचाप उस धुएं वाली जगह से बाहर निकल जाती है, और जब वो बाहर निकलती है तो वो किस में टर्न हो चुकी थी, एक वुड पैकर में टर्न हो चुकी थी। एंड हर टर्न इनटू अ वुड पैकर, दिस वुड पैकर कुड बी सीन फ्लाइंग आउट ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, और जब ये वुड पैकर वहाँ से उड़ा तो उसको कोई भी देख सकता था कि वो जो है चिमनी के बाहर से उड़ता हुआ देखा गया था। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. She had a scarlet cap. Scarlet means bright red. चमकीली जो है लाल रंग की उसकी सिर पर कैप थी। As you have seen a woodpecker, you can assume that a scarlet cap of the woodpecker. आपने अगर woodpecker को देखा है, कठफोड़े को देखा है, तो आप जो अज्यूम कर सकते हो कि उसकी जो सिर पर जो है कैप बनी होती है जो कि रेड कलर की होती है। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम। और वो जो है बिल्कुल वैसी की वैसी उसके सिर पर रहती है, लेकिन बाकी जो उसका शरीर है वो कैसा नज़र आना शुरू हो जाता है,
रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, बाकी के जो उसके बचे हुए कपड़े थे वो सारे जल जाते हैं। और कैसे हो जाते हैं, जैसे कि आग में कोयला जल जाता है, ऐसे ब्लैक जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं। नाउ and every country schoolboy had seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. What is told here? The poet says that every schoolboy living in the village, हर एक गांव का बच्चा जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, they have seen this woodpecker and that she still digs into the bark of the trees looking for worms and insects to feed on. वो क्या देखते हैं, वो अभी भी जो है उनको नज़र आती है कि वो जो वुड पैकर है वो पूरा दिन क्या करती है, पेड़ के अंदर जो है अपनी चोंच मारती रहती है और जो है कीड़े और छोटे मोटे इंसेक्ट्स को तलाशती रहती है अपने खाने के तौर पर। पूरा दिन जो है ऐसे ही चोंच मार करके अपना गुजारा करती हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम. So in this poem, what we came to know through this poem, about this poem, in this poem we learnt about the little woman who lived in a cottage, and when she was baking delicious cakes in the evening, Saint Peter during his sojourn the world reached for that door. He was very tired and hungry as he had been preaching and had not eaten any food. He asked her for a piece of cake. She was an ungenerous and close-fisted woman. Close-fisted means मुट्ठी बंद करने वाली, यानी कि जो अपने हाथ से कुछ ना छोड़ सकती हो, किसी को कुछ दान ना दे सकती हो. She therefore tried to bake a small cake to give away, but each time she baked, she felt the cake was too big to give away. And ultimately she tried to bake a paper thin cake. लास्ट में वो क्या करती है कि एक बहुत ही पेपर के जैसा पतला, एक कागज़ के जैसा पतला जो है केक तैयार करने की कोशिश करती है. विच ऑल्सो टर्न बिग इन हर एस्टिमेशन. उसके एस्टिमेशन में क्या हुआ, वो भी उसको जो है काफ़ी बड़ा नज़र आया. शी बिगेन टू वॉन्डर हाउ द केक्स दैट वर मींट फॉर अदर्स सीम्ड बिग टू हर. वो हैरान थी कि भी जो केक दूसरों के लिए बनाए वो इतने बड़े क्यों नज़र आते हैं. एंड दोज दैट वर मींट फॉर हर टू ईट सीम्ड वेरी स्मॉल. और जो उसको खाने के लिए अपने लिए मिलते हैं, वो डेली खाती है, वो उसको छोटे क्यों लगते हैं. सो द फाइनल केक वॉज ऑल्सो पुट ऑन द शेल्फ. शी डिडंट गिव एनी पीस ऑफ bread to Saint Peter. So this angered the Saint Peter, who was hungry and faint. He told her that she didn't deserve to be a human being, or she deserved to live, nor she deserved to live in a house and have a fire to keep her warm. He cursed her and said henceforth she would have to build her own house and would have to bore holes in hard dry wood to acquire the scanty food that a bird requires to survive. All of a sudden, a woodpecker flew off from the top of the house. The little woman was turned to a woodpecker, noticed by every schoolboy, as she keeps boring at the wood in search of food. So, I have told you the summary of the story, and thoroughly I have read this story. So, if you have any doubts regarding the poem, you can comment in the comment section, and prepare your notebooks properly, fair notebooks. So because I will check these notebooks as soon as possible, so you have to be prepared. And I will give you an assignment in your PDF, next PDF. You have to complete that properly, because the marks of these assignments will be added in your final marks also, result also. So you have to do them properly, and you have to prepare your notebooks properly.
So notebook should be covered and properly maintained. And as I told you, if you have any doubts, you can comment in comment section. Thank you.